Hello everyone. Today's topic is embryology. In embryology, in this video, we will study what will happen within 6 days from fertilization to implantation. Now, first of all, definition of embryology. Embryology is a science which deals with development and growth of an individual within the uterus, and it begins with fertilization and with birth of the baby. Now, embryonic development is directed by genome. Embryonic development is directed by genome. Genome contain all information required to make an individual. Genome contain all information required to make an baby. Now, this information is encoded in form of DNA. DNA contains sequence of genes. Now, these genes code for protein, and these protein in turn regulate the expression of the other genes, and these act as a signal molecule. In human genome, there are approximately 23,000 genes. Now, normal gestation period is 38 weeks and 266 days. Now, embryonic development or development of an individual is divided into two: prenatal and postnatal. Prenatal means before the birth, postnatal after birth. Prenatal is from fertilization to birth, and postnatal is after birth to up to 25 years. Now, in prenatal development, a single cell is converted into million numbers of million cells. Single cell is zygote, million cell baby. कैसे कन्वर्ट हुआ, यही प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे. उसका फर्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, what is fertilization? Fertilization is a process by which male and female gamete fuse. It occurs in ampullary region of fallopian tube. This is the ampulla of the fallopian tube. Primary follicles बने, oocyte रिलीज हुआ, है ना. ओवेरियन साइकिल में नंबर ऑफ प्राइमरी follicles begin to grow monthly, but usually one reaches to the full maturity and only one oocyte is discharged at ovulation. ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूटेराइन ट्यूब लिखा है यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब. ये ओवरी से एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवा फॉलिकल रप्चर हुआ, oocyte डिस्चार्ज हुआ, सेकेंडरी oocyte इन स्टेज ऑफ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन. oocyte जो है मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है. इसका सेकेंड मेयोटिक डिवीजन मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्टेड होता है. अगर एग फर्टिलाइज होगा तो ये अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? एम्पुला में. इधर से स्पर्म मेल गैमेट आ रहा है और इधर फीमेल, और ये जो एम्पुलरी रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. क्वेश्चन अराइजेस कि ये oocyte स्पर्म, ये जो गैमेट्स हैं मेल फीमेल गैमेट्स, कहाँ से आते हैं? तो ये गैमेट जब इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रही होती है एट अराउंड सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेल फ्रॉम द एपीब्लास्ट, जब हम टू लेयर्ड होते हैं उसी टाइम एपीब्लास्ट जो लेयर होती है उससे सेल माइग्रेट करते हैं और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यॉक सैक के अंदर फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ आते हैं वहाँ पे. देन फिर माइग्रेट करते हैं टू लाई इनसाइड द डेवलपिंग गोनैड, और आफ्टर प्यूबर्टी
गैमेट फॉर्मेशन होता है। जो मेल जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है वो डोरमेंट रहता है टिल प्यूबर्टी, और फीमेल का जो होता है वो 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही प्राइमरी oocyte जितने बनने होते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद में आफ्टर प्यूबर्टी डिफ्रेंशिएट होते हैं ये स्पर्म एंड oocyte के अंदर। नाउ देखिए ये प्राइमोडियल जर्म सेल है, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसके ऊपर ये जर्म सेल है। एपीब्लास्टिक लेयर से ये जर्म सेल माइग्रेट होंगे और यॉर्क सैक की वॉल में आ जाएंगे, और फिर ये माइग्रेट होके डेवलपिंग गोनाड्स के अंदर आ जाएंगे। नाउ fertilization is divided into 3 phases. Before fertilization, sperm undergo capaciation. Now what is capaciation? Sperms cannot fertilize oocyte when they are newly ejected. Capaciation, sperm become ready for fertilization. Capaciation means sperm is ready for fertilization. The process of capacitation takes about around 5 to 7 hours. It takes place in female genital tract, mainly in the cervix. In capaciation, the adherent protein from the seminal fluid are removed. Alteration of the plasma membrane over the head region to expose the receptor for binding to the zona pellucida. After capaciation, acrosomal reaction occurs. Sperm secrete enzyme from its acrosome, and these help sperm to penetrate the zona pellucida. And these enzymes contain basically hyaluronidase, trypsin-like enzyme और zona lysin enzymes. तो फर्स्ट क्या हुआ, कॉन्टेक्ट, उसके बाद में एक्रोसोमल रिएक्शन, आफ्टर दैट completion of zona pellucida penetration, fusion of the plasma membrane, entry of the sperm nucleus and cortical reaction. Now phases of fertilization. अगर fertilization को 3 parts में divide करते हैं तो first phase penetration of the corona radiata, second penetration of the zona pellucida, and third is fusion of oocyte and sperm cell membrane. फिर fertilization हो गया तो what are the results of fertilization? Result of fertilization, restoration of diploid number. गैमेट्स हेप्लॉइड होते हैं, जो इंडिविजुअल होगा वो डिप्लॉइड हो जाएगा फिर से. डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल, वेदर मेल और फीमेल. इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज क्या है? ये फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये स्पर्म है, पेनिट्रेट करेगा, ये कोरोना रेडिएटा है, इसको पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को. उसके बाद में फेज़ 2 पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेल्यूसिडा. देन फेज़ 3 फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल मेम्ब्रेन्स, गैमेट सेल मेम्ब्रेन्स. नाउ क्लीवेज start after 24 hours of fertilization, consider approximately day 1. After fertilization, zygote is formed. zygote सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और ये 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा. जोना पेल्यूसिडा स्टिल इंटैक्ट रहती है जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा. 2 सेल स्टेज, फर्दर डिवीजन, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage, 32 cell stage. Now what is cleavage? Cleavage is repeated mitotic division. It is repeated mitotic division of cells. Cell divide equally, increase in the number of the cell but not in the size. Size increase क्यों नहीं हो रहा? Because there is no synthesis of cytoplasm. क्वेश्चन आता है ब्लास्टोमियर, टर्म है, क्या है ब्लास्टोमियर? प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर. स्मॉल साइज की जो सेल है, स्मॉल साइज सेल, उनको हमने कह दिया
ब्लास्टोमेयर। तो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर 24 hours, second cleavage approximately after 40 hours of fertilization and continues. After third cleavage compaction started. Now what is compaction? In compaction, cell to cell tight junctions are formed and compaction separates outer cell layer. ये सेल है हमारे पास, थर्ड क्लीवेज हो गया, तो सेल के बीच में यहाँ पे टाइट जंक्शन बनेंगे, टाइट जंक्शन। तो बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन आउटर सेल एंड इनर सेल डिफ्रेंशिएट, सेग्रीगेट करता है दोनों को। आउटर सेल के अंदर टाइट जंक्शन आते हैं और जो इनर सेल है वो दोनों कनेक्टेड किससे होंगे? गैप जंक्शन से। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शंस, ये सब सेल टू सेल कैसे कनेक्टेड है उसके टाइप्स हैं। तो आउटर जो सेल जो अरेंज होंगे वो उनके बीच में होंगे टाइट जंक्शंस, और जो इनर सेल मास है उनके बीच में होगा गैप जंक्शन। नाउ एट द एंड ऑफ थर्ड डे और स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ डे हम 16 सेल स्टेज पे आ जाते हैं। तो ये जो 16 सेल स्टेज है इसको हम कहते हैं मोरूला और मलबरी स्टेज। बाय कॉम्पैक्शन सेल मास, outer cell mass have tight junction and inner cell mass have gap junction. Now morula is covered by zona pellucida. Still zona pellucida persists. तो ये zona pellucida है, ये जो है ये 16 सेल स्टेज है हमारे पास, आउटर है, सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस हैं और इनर सेल के बीच में गैप जंक्शन है। नाउ जोना पेलिसिडा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक पोजीशन। तो जोना पेलिसिडा के इम्पोर्टेंस क्या है? इसके इम्पोर्टेंस है, स्टिल हम अभी फेलोपियन ट्यूब के अंदर हैं, तो ये जितने भी डिविजन्स हैं ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहे हैं। देखो ये यहाँ पे हम, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, दिस इज़ द एम्पुला, यूटेराइन ट्यूब, डे 1 क्लीवेज, डे 3 हमारे पास मोरूला है। तो हम इम्प्लांटेशन जो होगा वो यूट्रस के अंदर होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं हो रहा है ना, जो मेन बॉडी है वहाँ होगा। तो यहाँ एक्टोपिक इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो सेल मास है उसके ऊपर जो जोना पेलिसिडा की कवरिंग है स्टिल परसिस्ट करती है। ठीक है, मोरूला स्टेज के अंदर जोना पेलिसिडा है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ जोना पेलिसिडा इज टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द एक्टोपिक पोजीशन। मोरूला रीच द यूटेराइन कैविटी बाय बीटिंग ऑफ द cilia of fallopian tube. Now uterine milk secretion, अब एक टर्म आ गई है हमारे पास, यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क क्या है? सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स। मोरूला है, बॉल ऑफ सेल है। यूटेराइन मिल्क जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ये एब्जॉर्ब बाय मोरूला एंड द इनर सेल्स आर पुश टू वन साइड, छोटी छोटी कैविटी बनने लग जाएंगी। जैसे ये बॉल ऑफ सेल थी हमारे पास, सब सेल है हमारे पास, ये पूरा मोरूला है हमारा। उसके बाद में हम यूटेराइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब किया, तो ये जो आउटर सेल लेयर बन जाएगी, ये आउटर सेल की, और फिर ये इनर सेल एक तरफ पुश हो जाएंगे और बीच में क्या, ये इनर सेल हो गए
और यहाँ पे कैविटी बन गई। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टो सील। ब्लास्टो सील कैविटी अपीयर हो गई बिकॉज ऑफ जो मोरूला है वो एब्जॉर्ब कर रहा है यूटेराइन मिल्क। और इनर सेल मास एक तरफ पुश हो गया। ब्लास्टोसील जो कैविटी बनी है अंदर, उसे हमने कह दिया ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील मोरूला जब फॉर्मेशन हो जाएगी ब्लास्टोसील, तो 5th डे में हम इसको क्या कह देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील, और ये इनर सेल मास है, ठीक है। एम्ब्रियो, इसको हमने कह दिया एम्ब्रियोब्लास्ट, ब्लास्टोसील। आउटर सेल लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो मीन्स न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी आउटर। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो सेल एम्ब्रियो बनाएंगे। तो एम्ब्रियोब्लास्ट जहाँ अब सेल पूरा स्फेयर है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जो जोना पेलिसिडा, ये बाहर की जो कवरिंग है ये जोना पेलिसिडा है। तो ये जो आउटर लेयर है ये है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा के बाद में जो आउटर सेल का रिंग दिख रहा है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट एंड कैविटी इज ब्लास्टोसील एंड इनर सेल मास इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। जिस तरफ इनर सेल मास होंगे उस एरिया को कहेंगे एम्ब्रियोनिक पोल, और अपोजिट पोल को कहेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल। Now inner cell mass give rise to fetus. Now outer cell layer, that is the trophoblast, provide form in future form chorion and placenta. Now trophoblast at embryonic pole is termed as polar trophoblast. ये trophoblast है, तो ये एम्ब्रियोनिक एरिया के एम्ब्रियोनिक पोल पे ये जो पोर्शन है इसका, इसको हम कह देंगे पोलर ट्रोफोब्लास्ट। और इस तरफ जो है रिमेनिंग पार्ट उसे हम कहेंगे म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट। ये वही सेम ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, एम्ब्रियोब्लास्ट, ये एंडोमेट्रियम है। अभी हम इस कंडीशन में, अभी हमारे पास 5th डे में यहाँ पे ये इसके बाहर भी एक कवरिंग है, दैट इज जोना पेलिसिडा। अब हम यूट्रस के अंदर आ गए हैं। तो जोना पेलिसिडा 6th डे, अप्रॉक्सीमेटली 6th डे क्या होगा, जोना पेलिसिडा स्टार्ट डिसॉल्विंग बाय ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम। पोलर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, पोलर ट्रोफोब्लास्टिक ये वाले जो सेल हैं, पोलर ट्रोफोब्लास्टिक सेल बिगिन टू पेनिट्रेट बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ यूटेराइन म्यूकोसा। अब ये एंडोमेट्रियम है, इसकी जो एपिथेलियल लेयर है, इसको ये जो ट्रोफोब्लास्ट के, ये जो पोलर ट्रोफोब्लास्ट है, पोलर ट्रोफोब्लास्ट, ये यहाँ इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और ये सिक्रीट करेंगे एल सिलेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। और इसके रिसेप्टर्स एंडोमेट्रियम पे हैं, क्या, सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन। कौन सिक्रीट करेगा, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम पे। तो ये क्या होगा, इनिशियली इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा। इम्प्लांटेशन से पहले जोना पेलिसिडा डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व किससे होगी, ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम से। जोना पेलिसिडा डिसॉल्व हुई, डिसॉल्व होते ही जो पोलर ट्रोफोब्लास्ट है वो एल सिलेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर पोलर एरिया में। और इसके रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर, और इससे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो डे 6 के अंदर हमें इम्प्लांटेशन मिलेगा। ये डे 6 यहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो किससे होगा, सिलेक्टिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, और इसका रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम में।
फर्दर अटैचमेंट एंड इन्वेजन बाय ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व्स, फर्दर जो आएंगे उसके लिए हमारे को क्या, इंटीग्रिन्स एंड फाइब्रोनेस्टिन, ये दोनों स्टिमुलेट करेंगे माइग्रेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे फॉर ट्रोफोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन. नाउ इम्प्लांटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल ट्रोफोब्लास्टिक एंड एंडोमेट्रियल एक्शन. अब इम्प्लांटेशन डे 6 पे स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कंप्लीट हो जाता है. प्रॉपर इम्प्लांटेशन में 2 to 3 days लगते हैं. इट टेक्स 2 to 3 days फॉर कंप्लीट इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियोनिक पोल एंटर द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम. अब डेसिडुआ की जो अपन पार्ट पढ़ते हैं, डेसिडुआ इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम है उसको हम डेसिडुआ बोलेंगे, जो लेयर्स हैं उनको. एम्ब्रियोनिक पोल एंटर कहाँ तक करेगा, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, बट नॉट गो बियॉन्ड दी स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम. ठीक है ना. नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो साइट होती है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट होती है. नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट जो है अपर यूटेराइन सेगमेंट होती है. बाकी और कहीं अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम एक्टोपिक इम्प्लांटेशन कहते हैं. तो इम्प्लांटेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास, पहले क्या होगा, एडिशन. एडिशन किससे हो रहा है, एल सिलेक्टिन, जो कौन से क्रिएट कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, और उसके रिसेप्टर है एंडोमेट्रियम पे. उसके बाद इम्प्लांट हो गया. देन इम्प्लांट हो गया इस तरीके से, जैसे ये है इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, ये इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स हैं, ये एल सिलेक्टिन है. ठीक है, ये रिसेप्टर, ये इम्प्लांट हो गया. उसके बाद में कंप्लीट इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के यहाँ पे क्या होगा, जो जहाँ से इम्प्लांटेशन की जो साइड है उसको क्लोज करने के लिए वहाँ पे कोएगुलेशन प्लग बनेगा और वहाँ पे फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर आ जाएगी और ये फिर कंप्लीट होगा इम्प्लांटेशन. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट.